Hello everyone, how are you all? Welcome back again to the computer class. This video will be um, doing with lesson 8, that is iterative statements in Python. In the last video, that means we have covered lesson 7 in the last video, right? And after that means just memorize or just remind all those things which I taught you in the last lecture, in the last chapter video. That is, what about Python, what was the working. In this chapter, we'll be dealing with all the iterative statements. Basically, what do you mean by iterative statements? You can see on your screen. Iterative statements are one which used to repeat themselves until our goal is not achieved. Okay, they used to keep on repeating their iterative conditions again and again so that they could get the appropriate result which is already set by the user. So here in this we'll be dealing with iterative statements: infinite loop, for loop, while loop, loop else. Okay, very much important. This will definitely create a base if you are understood in a very clear manner, very thorough manner. Okay, so let's start. Just one example here they have given. Your instructor instructs you to run and take 5 rounds of the playground to warm up. Before you start running, you fix a start point, right? On reaching the starting point again, you complete one round. Then you take the second round and so on. Okay. This way you keep track of the number of rounds until the process of taking rounds gets completed. That is what I told you, iterative. Means you keep on repeating that step until you didn't get your goal achieved. Okay. So here also one flowchart is there with the help of this they try to figure it out what basically iterative is statement is. First you started with the start point. Take starting point as C. Let's see, the C is the starting point and the C is equal to 0. You have initialized C variable with the 0 value. So what do you do? There is a condition that are the number of rounds greater than 0 or equal to 0. Oh sorry, greater than or equal to 5. Means C is greater than equal to 5. Firstly, you have set the value, that is C is equal to 0, right? But the condition is are the number of rounds greater than or equal to 5. So let's see. C is equal to 1 has come down in this condition. When C, that means 0 is greater than equal to 5, it's false. No, it will go again in this rectangle box and here take more rounds. That means increment the value, that is increase the value by 1. Increase the value of C by 1, that is C is equal to C plus 1. That means C is equal to 0 plus 1. Okay, do not take 0 is equal to 0 plus 1. C is a variable which will definitely hold some value and we are initializing or incrementing 0 by 1. So C is equal to, I told you equal to is the assignment operator. On the left side variable name is there, on the right side the value which will be holded by the variable. Okay, so C plus 1, that is 0 plus 1. Now C is equal to 1. Again goes here, 1 is greater than equal to 5. No, again C is equal to 1 plus 1. Now it has become 2 now. C is again, right, that C is basically 1 plus 1 is equal to 2. Now 2 will go here, right? So 2 is greater than equal to 5. No, again it will be come in a very, C is equal to 2 plus 1 equals to 3. Now 3 will go here, it will check for 3 is greater than equal to 5. No, again
c is equal to 3 plus 1 4. Now again c is equal to 4 plus 1. Okay, so now when the 5 goes here, that means 5 is greater than or equal to 5. It's true, so it will stop here after this, after reaching the point. Okay, so this is what I was telling you. The motive is just to tell you that how to initialize the value, how to increment the value, how to check the value under the conditions. Okay, next is iterative statements. Appropriately, the statements that keep on repeating themselves as long as a given condition is true are called iterative statements or repetitive statements. As soon as the condition becomes false, the loop terminates. Loop is basically the loop which keeps on going and going until the condition is true, not true. These are also called looping statements or simply loops. Okay, so here an iterative statement is based on 3 values. Just listen very carefully. 3 values: a start value which is known as initial value, जहां से हम start करते हैं, that is c is equal to 0. A test condition, a condition must be there कि आपको करना क्या है, बेसिकली आपका एम क्या है. ठीक है, c is less than equal to 5. यहाँ पे greater than equal to 5 आना था, इनसे मिस प्रिंट हुआ स्कूल बुक पब्लिशर से. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेप वैल्यू, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. एग्जाम्पल c इज इक्वल टू c प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज की हुई वैल्यू को ऐड करते हैं सो दैट हमें पता लग सके. ठीक है, और हमारा गोल अचीव हो सके. ठीक है, तो एवरी लूप वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल नोन एज कंट्रोल वेरिएबल. तो एक कंट्रोलिंग वेरिएबल होता है. कंट्रोल वेरिएबल यूजुअली स्टार्ट्स विद वैल्यू 0 बेसिकली एंड और 1. ठीक है, बट इट कैन बी असाइंड एनी नंबर डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट. कुछ भी हो सकता है, वट एवर रिक्वायरमेंट यू विल बी हैविंग. आगे चल के विल बी हैविंग मोर प्रोग्राम्स हेयर, तो उन पे आपका जो कंट्रोल वेरिएबल रहेगा वो अलग अलग वैल्यूज सेट करेंगे हम. ठीक है, तो बस समझना आता है ध्यान से. So there are 2 types of iterative statements, for loop and while loop. Very much important. For loop is used when we are sure about how many times the loop body will be executed. तो हमें पता है कि इतने लूप में या इतने राउंड्स में हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा. That is known as definite loop. Okay. So इसका सिंटेक्स क्या है वो आप देखो. सिंटेक्स क्या होता है? The way we write the loop. ठीक है, तो उसका जो फॉर्मेट होता है उसको सिंटेक्स बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज द सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या है उसका? फॉर के बाद एक वेरिएबल. ठीक है, फिर उसके बाद इन रेंज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट. ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो हम सेट करेंगे कि जो भी वैल्यू है. ठीक है, तो हमने ये नहीं लिखना है x इज इक्वल टू 20 यहाँ पे या x इज इक्वल टू 10, हम सीधा 10 लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम x फॉर x इन रेंज 10, 20, डिफॉल्ट वैल्यू इज 1. ठीक है, मतलब जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है हमने, जो एडिशन करनी है या फिर डिक्रीमेंट करना है, तो वो कितने नंबर से करना है हमने? वैल्यू 1 से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ द डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट द स्टेप वैल्यू इन अ लूप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. एक एक करके ऐड होगा. जैसे मैंने c इज इक्वल टू c प्लस 1, c इज इक्वल टू c प्लस 1 मैंने आपको करके दिखाया. ठीक है, तो आगे करेंगे हम प्रोग्राम में, वो मैं समझाऊंगा आपको. ठीक है, तो स्टार्ट करने लगे हैं बस प्रोग्राम्स हम. एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, द इन ऑपरेटर. इन ऑपरेटर ये देखो, फॉर वेरिएबल इन रेंज लिखा हुआ है ना, तो ये जो इन है एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो ये अटैच करता है सारी चीजें फॉर लूप के साथ. ठीक है, सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ अ लूप. ठीक है, अगर इन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, तो इन या नॉट इन दो तरह के होते हैं. इन ऑपरेटर या नॉट इन ऑपरेटर इज नॉट देयर, देन
इट विल नॉट बी वर्थ कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ अ लूप, या फिर आप ये कह सकते हो यू वोंट एबल टू कंट्रोल द लूप वर्किंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ अ गिवन वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस और नॉट। ये देखता है कि आपके पास जो गिवन वैल्यू है, ठीक है, वो है या नहीं है उस रेंज में। जैसे आप चेक करते हो, कई बार टीचर आपके रूम में आता है, ठीक है, क्लासरूम में, तो पूछता है इज अमन देयर, ठीक है, तो वो चेक कर रहा है, तो मतलब ही और शी इज कमिंग इनसाइड द रूम, इन द रूम। तो इन ऑपरेटर बहुत जरूरी होता है हर चीज में। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे प्रोग्राम में भी अप्लाई होती है। तो सिंटैक्स क्या है, वैल्यू इन देन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। वो बताएगा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट 10 इन इन 1 2 3 10, मतलब ये बताया है उन्होंने, ठीक है, कि ये जो 10 है ये इस रेंज में है या नहीं है तो वो ट्रू दिखा देगा। ठीक है, तो लेट मी ओपन दैट पाइथन फॉर यू। ओपन हो रहा है या सो प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमने, प्रिंट करना नहीं है बेसिकली, वी आर चेकिंग कि जो पहले ब्रैकेट स्टार्ट, प्रिंट के बाद फिर 10, फिर एक स्पेस, ठीक है, फिर उसके बाद इन, फिर कोई स्पेस नहीं, फिर सर्कुलर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 1 2 5 7 10। ठीक है, तो ये मैं एंटर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये ट्रू दिखा दिया इसने मुझे। ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव मोड में मैंने स्टार्ट किया, आप इसको स्क्रिप्ट मोड में भी लेके जा सकते हो। फाइल, न्यू विंडो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट 10 इन 1 2 10। ठीक है, ये एंटर कर रहा हूँ मैं, तो एंटर करके चलता नहीं है, F5 करूंगा और ओके करूंगा, तो ये पूछेगा कि स्टार्ट प्रैक्टिस 2। ओके कर रहा हूँ मैं, रिप्लेस कर देता हूँ तो थोड़ा, तो यहाँ देखो ट्रू आ गया, देखो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। इन जो पता करता है कि वेदर योर नंबर 10 इज प्रेजेंट इन द गिवन सीक्वेंस और नॉट। ठीक है, और वो एग्जीक्यूट करेगा। एक और प्रोग्राम है, ठीक है, तो जब आप रन टाइम पे कोई नंबर देते हो, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो कैसे अप्लाई होता है, ये मैं बंद कर देता हूँ। सी कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट, ठीक है, एंटर नंबर, ठीक है, फिर प्रिंट, प्रिंट क्या करना है हमने, प्रिंट देखो 10, सॉरी प्रिंट हमने करना क्या, बेसिकली हमने करना सी इन, रेंज है जो वो है 23, तो मैं 12 प्रेस करूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, एंटर अ डिजायर्ड नंबर, F5 ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो एंटर अ डिजायर्ड नंबर, तो मैं 12 कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि उसमें ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। जैसे ही 12 करूंगा तो वो ट्रू आ गया। ठीक है, ये स्क्रिप्ट मोड में था, वेरी इजी, क्लियर। तो आपको ये सेट करना होता है कि जो ये वेरिएबल है वो यहाँ आ जाए, रादर देन पहले हम डायरेक्ट नंबर दे रहे थे, अब नंबर की बजाय हम जो ये 12 या कुछ एंटर करवा रहे हैं, ये कोई एक वेरिएबल में डाल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी आर एबल टू राइट इट डाउन डायनामिकली। और यहाँ पे इंटीजर इनपुट फंक्शन आपने यूज करना है, इंट ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट, बिकॉज अगर आप इंटर नहीं लगाते तो डिजायर्ड नंबर सी कोई भी वो उसकी कोई डाटा टाइप तो रहेगी नहीं, तो वो एरर दिखा सकता है। वैसे तो नहीं दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर ही उठाएगा जब आप इंटीजर एंटर करोगे, बट स्टिल कैन बी चांसेस ऑफ एरर। तो जस्ट टू मेक श्योर यू आर वेरी मच प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कभी भी। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामर हो बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज योर इन मेंबरशिप विद फॉर लूप, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा वर्किंग इसकी क्या है फॉर लूप की। ठीक है,
तो मैं फॉर लूप यहाँ पे नॉर्मली चला के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, इन स्क्रिप्ट मोड ओनली। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट ना करते हुए आई डू वन थिंग कि मैं इसको सेव एज करवाऊंगा, ठीक है। ये डिलीट कर रहा हूँ वैसे, तो मैं इसको सेव एज करवाऊंगा फॉर, ठीक है, आई इन, ठीक है, इन के बाद देखो उन्होंने सीधा नंबर लिख दिया, नंबर के बाद उन्होंने कॉलन डाला है। ये ध्यान रखना, जो नंबर है वो आपकी बेसिकली सीक्वेंस है एक 10, 20, 30, 40, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं यहाँ जब बैक स्पेस दबाता हूँ तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं यहाँ आऊंगा एक ब्लॉक के बाद, क्योंकि उसका ब्लॉक का एक सिंटेक्स है प्रिंट आई, ठीक है। तो वो आई आप ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो मैं इसको सेव एज करूंगा, सेव एज करके थर्ड F5। तो जैसे ही मैंने F5 किया तो जो मेरा आई है, क्योंकि वो आई था, ठीक है, तो जैसे ही आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि जो आई है ये आपका पहला है 20, 30, 40, कॉमा के साथ सेपरेट कर रहे हो तो ये प्रिंट हो जाएंगे 10, 20, 30, 40 अलग अलग लाइन में। प्रिंट आई, बिकॉज आई आपका 10 से इनिशियलाइज हो गया बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। ये आपको वर्किंग समझनी होगी इसकी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ यूज करते हो फॉर आई इन 10, 20, 30, 40, तो उसका मतलब है फॉर आई की वैल्यू हमने अलग अलग सेट की। पहले आई इज इक्वल टू 10 किया, फिर आई 20, फिर आई 30, आई 40। तो जैसे ही आपने प्रिंट किया, पहले सबसे पहले आई 10 था तो पहले आई 10 प्रिंट हुआ, फिर वापस गया, फिर आई 20 हुआ, फिर नीचे आया, फिर 20 प्रेस, फिर प्रिंट हुआ। फिर जैसे ही आई 30 हुआ, फिर प्रिंट की कमांड आई, फिर 30 प्रिंट हुआ, फिर 40 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, फॉर लूप की वर्किंग समझ लो आप इन मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारा रेंज फंक्शन है। तो इन रेंज दोनों चलते हैं साथ साथ, ठीक है, रेंज अकेला नहीं चलेगा। तो रेंज का भी वही सिंटेक्स है आपका, रेंज के साथ इनिशियल वैल्यू है उसकी फाइनल वैल्यू है कि हाँ 10 से 20 तक चलती है, ठीक है। और स्टेप वैल्यू वही साथ में, अगर आपने कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा अभी, क्लियर, आगे चल के आएगा। ये सिर्फ एक सिंटेक्स है कि पहले इनिशियल वैल्यू होती है रेंज फंक्शन में, फिर उसके बाद फाइनल वैल्यू उसकी, ठीक है, उसके बाद स्टेप वैल्यू। अब ये हम स्टार्ट करते हैं, एक रेंज फंक्शन का फॉर्मूला करते हैं, फंक्शन प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। आई इज इक्वल टू 10, प्रिंट आई, दैट मीन्स प्रिंट 10 इन रेंज 10 और 20 उस रेंज में। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, पहले ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है, आई इज इक्वल टू 10, प्रिंट आई इन रेंज। रेंज का फंक्शन ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में पैरेंथेसिस आती है हमेशा, ध्यान रखना, क्लियर। तो ये पैरेंथेसिस है आपकी, पैरेंथेसिस में आएगा आपका 10, 20। तो जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, ठीक है, वो पूछेगा सेव एज, बट ये सेव एज करना है मैंने, नहीं, ये छोटे प्रोग्राम के लिए हम सेव कर लेते हैं। और देखो ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया? अब इन रेंज के साथ हमने यूज किया है, ठीक है। रेंज फंक्शन भी वही है जो हमारा ये स्टार्टिंग में था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन, सिंपल इन, प्रिंट 10 इन, बस। अब क्या हो गया, 10 इन रेंज, तो काम वही है, ट्रू और फॉल्स, बट अलग अलग तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और बीच में सिंटेक्स रेंज का थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वो तो सीधा सीधा था 10, 20, 30। अब रेंज वो सीधा प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हम लिख रहे थे, ये प्रिंट फंक्शन के अंदर इन मेंबरशिप ऑपरेटर, उसके साथ रेंज फंक्शन साथ में है। रेंज में एक्सटेंड हो जाती है वर्किंग क्राइटेरिया, फैसिलिटी या प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, वो हमारी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आगे देखो, प्रिंट आई 10 इन रेंज 100, 200। F5 किया, ओके किया, तो ये फॉल्स आ जाएगा आंसर। देखो फॉल्स आ गया आंसर, क्योंकि 10, 100 और 200 में है ही नहीं, 100 या 200 उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा देखना होता है कि आप प्रेजेंट है या नहीं है।
अब सिंपल फॉर लूप जो मैंने 1, 20, 30, 40 आपको करवाई थी, तो वो तो आपकी आ गई, क्लियर, राइट। बट रेंज फंक्शन में साथ में कैसे चलती है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको देखना होगा ये, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करूंगा फॉर लूप आई जो आपका वेरिएबल है इन रेंज, रेंज चलेगी आपकी 10 to 20, सॉरी, और प्रिंट करवाना है आपने आई, सिर्फ आई प्रिंट करवाना है आपने, सिंपल। पहले आई आपको मैं प्रिंट करवा के दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो रेंज में यह स्टार्ट हुआ है। तो इसको मैं F5 कर रहा हूँ, ओके। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 टिल 19। अब इसकी वर्किंग देखो क्या हुई। मैंने क्या किया, फॉर आई इन, जब मैंने बोला था फॉर आई आपका जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है, ठीक है, जो आपका इनिशियल वेरिएबल है, ठीक है, जब आपको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो मतलब वो आई की करवानी है, क्योंकि आपने आई यहाँ दे दिया। अगर आप जे दे देते तो जे हो जाता है, जे हो जाती है वेरिएबल, ठीक है। तो आई इन रेंज 10, तो समझ लो कि रेंज है 10 से 20 तक, ये आपकी इनिशियल वैल्यू, ये आपकी फाइनल वैल्यू, 10 से लेके 20 तक। बट ये लेस देन 20 चलता है, लेस देन इक्वल टू 20 नहीं चलता, ठीक है, इसीलिए वो 19 तक हुआ। ये हुआ आपकी इनिशियल वैल्यू जो कि i इज इक्वल टू, ये मैं आपको बता देता हूं, i इज इक्वल टू 10 सेट हो गई थी, ठीक है। तो अब जैसे ही सेट हुई, ठीक है, उसके बाद उसने नीचे आया और प्रिंट हुआ, तो सबसे पहले प्रिंट हुआ 10, फिर उसके बाद i की वैल्यू यहां पे दोबारा गई, ये वापस ऊपर गया, ठीक है, i आपका हो गया 11, एक एक बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपका जो सिंटेक्स था वो था यहाँ पे 1, समझ आई। ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, मैं आपको करके बता देता हूँ। ये रेंज था, जो रेंज का जो है, ये देखो, ये डाला, ये स्टार्ट है, आपको सिंटेक्स दिख रहा है, ये आपका 10 से स्टार्ट है, मतलब आई आपकी 10 स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज हो गया। ये आपका स्टॉप है कॉमा के बाद, मतलब 20 तक चलेगा, और ये रेंज ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मतलब ये जो 20 है ये आपका रेंज ऑब्जेक्ट है। तो ये है आपका इनिशियल वैल्यू, आपको बता रहा हूँ जस्ट मैं, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, कहाँ तक चलेगा, ये आपकी स्टेप वैल्यू है। स्टेप वैल्यू क्या होती है, मतलब बेसिकली स्टेप वैल्यू आपकी रहेगी कि आप कितने से इंक्रीमेंट करा रहे हो, तो एक एक करके करा रहे हो, ठीक है। तो यही है, जो इनिशियल वैल्यू आपकी 10 हो गई, फाइनल वैल्यू आपकी 20 है, और स्टेप वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, मतलब ये 1 ऐड हो रहा है। पहले 10 हुआ इनिशियलाइज होके, तो 10 प्रिंट हो गया। अब जैसे दोबारा आएगा तो ये एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो 20 और 11 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया, ऐसे करके 19। जैसे ही 20 पे आएगा तो 20 इज लेस देन 20, ये तो फॉल्स होगी ना कंडीशन। ट्रू कौन सी कंडीशन है, 20 इज लेस देन और इक्वल टू 20, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है। तो अगर ये तो है नहीं, बेसिकली मैंने बोला कि लेस देन फाइनल वैल्यू तक चलता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यही थी आपकी समझाने वाली चीज, ठीक है। एक बार ये चीज आपको समझ आ गई कि वर्किंग चल कैसे रही है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो मैं यहाँ 1 लगा रहा हूँ चाहे नहीं लगा रहा, ये डजंट मैटर, चलता जरूर है। अगर मैं यहाँ पे 21 करता हूँ, F5 करके ओके करता हूँ, ये 20 तक चलेगा। देखो पिछली वैल्यू देखो कहाँ तक चली थी, मैंने कितनी बार चलाया, 19 19 19, जब मैंने यहाँ पे 21 कर दिया तो ये 20 तक चला गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है, कि ये कैसे वर्किंग कैसे है इसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारी आ गई। अब आता है आई मल्टीप्लाई बाय आई। अब ये ध्यान रखना है आपने, ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऐसे आता है, टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स गिवन इन रेंज, ये है
टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स गिवन इन रेंज। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है, i मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। तो इसको मैं सेव एज करूंगा, प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन रेंज, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये एक प्रोग्राम है। तो ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये लिखा आ गया प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर्स, प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन रेंज। जस्ट मैंने करवाया, F5 किया जैसे ही। तो अब ये समझ आया आपको कैसे हुआ? मैं समझाता हूँ। ये देखो, अब नीचे समझाता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू सेट हो गई 10, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर वाली लाइन पे ये i की वैल्यू 10 सेट हो गई, जैसे ही वो नीचे आया उसने प्रिंट करवा दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि होता है 100, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर आ गया 100, तो उसने प्रिंट करवा दिया। फिर दोबारा हुआ, दोबारा क्या हुआ, i की वैल्यू अब एक बढ़ गई थी, वो हो गई थी 11, ठीक है। समझ आई ना आपको? क्योंकि ये इसके बाद एक कॉमा डाल के 1 था ना, जो अगर ना डालो तो 1 नहीं लेता बाय डिफॉल्ट, 0 नहीं लेता। तो जैसे ही 11 हुई तो प्रिंट करवाया, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 11, जो कि होता है 121, सिंपल। तो ये आ गया 121। फिर i की वैल्यू हुई 12, तो 12 i की वैल्यू जैसे ही 12 हुई तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144, सिंपल। ऐसे ही सारे आ गए। तो जब हुआ 19 मल्टीप्लाई बाय 19 तो 361 आ गया। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ये ऐसे लूप चलती है, ये इसको समझना बहुत ही इजी है अगर समझा जाए थॉरली, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। ये रेंज में था, इन अ रेंज, बहुत इजी था। तो ये हो गया प्रिंट एक प्रोग्राम। नेक्स्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब जो डिफॉल्ट वैल्यू थी हमारी, जो कि हमारी 1 थी, एक एक करके बढ़ रहा था। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं +3 करवा देता हूं, कि मतलब जो मेरी इंक्रीमेंट हो रहा है वो 1 1 ना हो, वो +3 हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, प्रिंट करवाऊंगा i। तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमेशा कंप्यूटर पे सीधे नहीं सीखी जाती, यू हैव टू डू इट ऑन द नोटबुक। आप नोटबुक पे करके देखते हो कि ये स्टेप क्या करेगा, उसके बाद कौन सा स्टेप अप्लाई होगा, फिर एग्जीक्यूट कौन सा होगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, और ये कंप्यूटर कैसे इसको लेगा, उठाएगा कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अभी मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रन नहीं करूंगा अभी देखते हैं। i की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई है 10 से, क्लियर। तो नीचे प्रिंट करवा रहा हूँ i 10, तो पहले 10 आएगा, ठीक है, प्रिंट 10 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही प्रिंट 10 हुआ, साथ में ही +3 हो गया, मतलब i की वैल्यू हो गई आपकी 13। तो कितना आएगा आंसर? 13। फिर 13 में 3 और ऐड हो गए, फिर i की वैल्यू अब हो गई 16, ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी प्रिंटेड एज 16। फिर 16 + 3, इसको मैं थोड़ा और कर देता हूं। यहां पे जैसे ही प्रिंट होता है तो बैक एंड पे ऐसे हो जाता है, 10 + 3 = 13। 13 हो गई तो ये नीचे आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये आएगा, ठीक है, तो इधर 16 + 3 = सॉरी 13 + 3 = तो जैसे ही यहाँ पे जब 16 प्रिंट होगा तो 16 + 3 = 19 हो जाएगा। तो i की वैल्यू बन जाएगी 19, तो 19 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे 19 है और ऐड जरूर होगा। देखो अब 19 में +3, ठीक है, 22 हो गए, बट हमारी रेंज से बाहर हो गया, तो वहां पे ही जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और वो आउट हो जाएगा। मतलब आउट का मतलब
ब्रेक लग के प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाएगा। अब ये देखो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको F5 कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो देखो 10, 13, 16, 19, तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, तो मेरा देखो 10, 13, 16 और 19, सिंपल, बहुत इजी है ये। ठीक है, आपको पहले यहाँ पे समझना होता है। तो ये प्रोग्राम क्या था आपका, ये प्रोग्राम था कि जस्ट हमने वैल्यू इंक्रीज करानी है बाय 3। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, सेव कर दिया हमने। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे होता है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होता है अगर आपने n फैक्टोरियल ढूंढना है, n इज इक्वल टू 7 है, तो उसका मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर आप ढूंढते हो n मतलब 3 का, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 टू 6 आ जाएगा आंसर उसका। समझ आई आपको? तो ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हम ऐसे ढूंढते हैं, हमने शायद मैथ में भी किया होगा, अगर नहीं किया तो आ जाएगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में, बट आई थिंक 8th 9th में आ जाता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करना। तो हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं। सो तो फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, सबसे पहले हमें एक नंबर एंटर करना होता है वहां पे। तो मैं पहले एक नंबर एंटर करवाऊंगा जो कि x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट का होगा, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद देखो क्या है, हमने इनिशियलाइज करवाया एक ठीक है नंबर को, f इज इक्वल टू 1, एक f लिया नंबर, ठीक है, क्योंकि एक हेल्पिंग नंबर भी चाहिए हमें जिसके साथ हम उसको ऐड करवा के मल्टीप्लाई करवा सकें। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर किसी का चाहिए हमें। ठीक है, और इसकी वर्किंग देखो अब क्या है, हम फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, जो हमें रेंज चाहिए, रेंज ब्रैकेट 1, ठीक है, मतलब आई को 1 से स्टार्ट करवा रहे हैं हम, ठीक है, और a प्लस 1, a प्लस 1। अभी नहीं समझ आ रहा होगा बट ध्यान रखना, मैं समझाता हूँ आपको ये वर्किंग कैसे होती है। f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज ये देखो, ठीक है, कॉमा f, सॉरी कॉमा f, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्लियर कि कैसे चलेगा हमारा ये प्रोग्राम। F5 ओके, सिंटेक्स एरर आया, ओके ओके सॉरी, F जो है आपका एक कॉलन होता है, भूल गए थे, एक्सपेक्टेड, ओके। तो जब भी फॉर लूप चलता है तो एक टैब देना आपने, ठीक है, ब्लॉक चलेगा नहीं अदरवाइज। अब हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं, सबसे इजी, पहले 3 एंटर, ओके, हमने वहां पे a ले लिया जबकि x आना था, यहाँ पे लेना था x, बाय डिफॉल्ट वो a ले लिया, प्रोग्राम खुद कर रहा था अपना, वहां से देखा गया। 3 एंटर, द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज, ये एरर आ गया यहाँ पे, ये एरर क्यों आया है, बिकॉज 3 है, 3 है तो इसका तो आंसर ज़्यादा आना चाहिए था। चलो मैं 1 मिनट 5 का देख लेता हूँ, मे भी कई बार कुछ एरर आ जाता है। ओके 1 आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है, ओके, ये एरर देखो, 1 लिखा है हमने, वहां आना था i, कि i के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो मैं कर रहा हूँ 3, अब आएगा 6, ठीक है। तो वापस जाता हूँ, F5 करता हूँ मैं, तो मैं करता हूँ 5 का, तो आंसर 120,
अब समझो यहाँ पे वर्किंग, इसकी आपकी वर्किंग समझा देता हूँ। एफ हमारा 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया, सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग समझाता हूँ। सबसे पहले x में हमने दिया 3 और f की वैल्यू हमने 1 कर दी, ठीक है। f की वैल्यू हमने कर दी 1 और अब फॉर लूप हमने स्टार्ट की है। आई फॉर लूप है हमारी, आई हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रेंज है, ठीक है। वर्किंग किसकी होगी? एफ की, एफ चलेगा हमारा और एफ हमें रिजल्ट देगा। हमने आई फॉर लूप सिर्फ इसलिए लगाई है कि जितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो करनी है हमने, बस, और कुछ नहीं। आई नहीं प्रिंट होगा कहीं, मतलब आई नहीं प्रिंट होगा कहीं पे, आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके फिर चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि ये जो आई है हमने इनिशियलाइज करवाया 1 से, आई की वैल्यू है 1, ठीक है। जैसे 1 हुई और कहां तक चलेगा? आई कॉमा एक्स प्लस 1 तक। अब x हमने क्या डाला था? हमने x डाला 3, तो ये आपका चलेगा, जो रेंज है वो है आपकी 1 जो इनिशियल है, और ये चलेगा 3 + 1 4 तक, ठीक है। 3 डाला प्लस 1 तक 4 तक चलेगा। और f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई करवा दिया, तो f इज इक्वल टू f जो कि 1 है मल्टीप्लाई बाय आई, आई भी 1 है, ठीक है। तो पहले 1 आ गया, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है, आई और 1, क्लियर। तो ये बैक एंड पे 1 चल रहा है, अभी सिर्फ 1 आ गया। आंसर एट द एंड आएगा जितनी देर तक कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो नंबर इंक्रीमेंट हो गया था 1 से हो गया, ठीक है, और आई आपका 2 हो गया। x की वैल्यू आपकी वही रही, क्लियर। f आपका 1 इनिशियलाइज था, बट नीचे वो जो यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, अब फॉर लूप के अंदर ही घूमेगा। ये चीजें एक एक बार यूज हो गई, ये नहीं यूज होगी, अब यहाँ पे घूमी जाएगा। ये उतनी देर तक नहीं प्रिंट होगा जितनी देर तक आपका जो वो कंडीशन है वो आ नहीं जाती, x + 1, ठीक है। तो हमने जब 3 एंटर किया था, तो जितनी देर तक वहां पे 3 नहीं आ जाता उतनी देर तक वो चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा अचीव हो जाएगा तो वो साथ में ही शो कर देगा 3 × 2 × 1, क्लियर। तो काफी इजी स्टफ है ये वाला। नेक्स्ट देखो आपका है, यहाँ पे इसकी वर्किंग भी है, आप देख लो एक बार। जो प्रोग्राम आस्क फॉर अ यूजर टू एंटर 5 नंबर दिया, असाइन द वैल्यू 1 टू f, ठीक है, जो हमने ये 1 दी थी, ठीक है, हमने f इज इक्वल टू 1 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई द रेंज इन फॉर लूप दैट इज 1 to a + 1, जो मैंने बोला था कि वो 1 से लेके 4 तक चलेगा वो, ठीक है। और वेयर a विल एक्सेप्ट द वैल्यू, वही है जो a हमारी x थी वो, क्लियर, वही एंटर कर रहा था। द फैक्टोरियल विल बी कैलकुलेटेड एज f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। तो f हमारा 1 था, तो f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, पहले 1 आ गया, उसके बाद फिर ये एक इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उतना ही रहेगा, 6 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 5 + 1 6 हो गया ना, तो 6 तक है ये। तो फिर उसके बाद नीचे जब इंसर्ट होके जब ऐड हो जाएगा f मल्टीप्लाई बाय 2, जो f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, वो 2 आ गया आंसर। अब f 2 हो गया आपका, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, i की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होके आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। एक बार मल्टीप्लाई करके आप जरूर देखना, अगर कोई एरर है तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रोग्राम है वो है आपकी फिबोनाची सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। उसकी वर्किंग देखो क्या है।
फिबोनाची सीरीज से पहले मैं आपको एक बार इसकी वर्किंग आई थिंक मैंने बताई नहीं है, हाँ ये यहाँ पे ही रह गया था, कोई माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो x+1 है, मैं ये दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ। ये जो i है, i इज इक्वल टू हमारा 1 है, क्लियर। और ये कहाँ तक चलेगा, i इज लेस देन, सॉरी ये आगे चला गया, i इज लेस देन, वो x+1 कितना हो गया 4। ठीक है, मतलब i इज लेस देन 4, मतलब 1 इज लेस देन 4। तो जैसे ही 1 इज लेस देन 4 हुआ, ये ट्रू हुआ, तो ये नीचे आया, नीचे आया तो f इज 1 इज इक्वल टू 1, जो कि f हमारा 1 आ गया। ठीक है, फिर दोबारा जैसे ही ऊपर गया एक इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई 2, क्लियर। तो 2 इज लेस देन 4, ट्रू है। फिर नीचे आया f इज इक्वल टू, जो f की वैल्यू 1 थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया 2, f हमारा 2। अब i की वैल्यू 3 हो गई और 3 इज लेस देन 4, जो ट्रू है। f इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि 6 हो गई। अब i की वैल्यू हुई 4, तो जैसे ही 4 हुई, 4 इज लेस देन 4, ये कंडीशन हो गई फॉल्स और ये आउट, बाहर, क्लियर। तो ये ऐसे चलती है कंडीशन इसकी। तो जैसे ही ये कंडीशन बाहर हुई और जो उसका रिजल्ट था जो था 6, वो सीधा इसके बाद नीचे आएगा और वो प्रिंट करा देगा 6, सीधा प्रिंट 6 हो जाएगा। तो तभी आपका ये आंसर 6 आ गया। अगर यही सेम चीज 5 है तो ये 5 बार चलेगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जितनी देर तक ये 120 नहीं आता उतनी देर तक ये बाहर नहीं आएगा। जैसे ही 120 आया उसके बाद लास्ट 6 होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 6 होगा, तो वो साथ में ही बंद हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ये वर्किंग देख लेना कैसे है। ये x+1 का मतलब है आपका 3+1। x हमने 3 एंटर किया था, जो कि ये 3 है, और 1, 3+1 4 हो गया। तो ये कंडीशन क्या होती है कि लेस देन 4 है, जो फाइनल है आपकी। मैंने आपको बताया था 1 to 10 जब मैं आपको प्रिंट करवा रहा था, क्लियर। फिबोनाची सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे जाके +1 +2 में भी है, इंजीनियरिंग में भी है। फिबोनाची सीरीज ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही करवा दो, उसका एक स्टेज होती है, एक वर्किंग स्टेज है कि वो फिबोनाची कैसे बनी। सबसे पहले तो दो वैल्यूज हमें इनिशियलाइज करवानी होती है, 0 एंड 1 एज इट इज। ठीक है, जो कि यहाँ पे करवाई है a और b इन्होंने, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 दो वैल्यूज नहीं, उसके बाद ये फिबोनाची अपने आप बनती है, कैसे, प्लस प्लस करके। देखो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13। तो एक जो आंसर आया उसके बिल्कुल पीछे वाला जो नंबर था उसके साथ ऐड करवाना हमने। ठीक है, सबसे पहले तो ये लॉजिक था, बीच में लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब यहाँ पे हम सीधा एंटर करवाते हैं, एंटर द लेवल अप टू विच द सीरीज नीडेड टू बी प्रिंटेड। तो ये यहाँ पे नंबर एंटर करना है हमने कि हम वैल्यू लिख देंगे 8 तक, तो ये 8 तक ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 और 1 तो सीधा प्रिंट होगा, यहां से आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम स्टार्ट करें, तो ये मैं हटा रहा हूँ, तो इसको पहले मैं सेव एज कर रहा हूँ। फिबोनाची सीरीज होता है, ठीक है ना, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो n मैं एक नंबर ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू इंट, इनपुट फंक्शन है आपका, और एंटर द number up to which the series needs to be printed, clear। तो एंटर किया हमने। अब a की वैल्यू हमने करवाई 0 इनिशियलाइज, और b की वैल्यू हमने करवाई 1।
ठीक है। अब देखो इसका लॉजिक, दो तो सीधे प्रिंट करवा दिए हमने, 1 और ए और बी। ठीक है, वर्किंग यहाँ पे फॉर लूप के साथ, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब रेंज क्या होगी आपकी, रेंज तो हमने है ही प्रोग्राम रेंज का सारा, 1 कॉमा n+1 ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब इसमें c इज इक्वल टू a+b, फिर उसके बाद प्रिंट c। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड क्या करवाना है, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, स्वैपिंग कर देनी है हमने। ठीक है, तो इसकी मैं वर्किंग आपको बताता हूँ, क्लियर। पहले ए बी को इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद जो जो आंसर आता गया उसको ए बी बनाते गए और ऐड करवाते गए। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं इसको F5 कर रहा हूँ। ओके, सिंटेक्स एरर आया कुछ, लेट मी सी कि कहाँ आया। ए कहीं यूज, हाँ, invalid syntax, again invalid syntax, how come? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मैंने इधर दो ब्रैकेट नहीं डाले। अब देखो, तो हम 5 तक करते हैं, 0 और 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद 1 और ये इन्फिनिटी तक चल गया, तो ये बंद नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। ये कुछ एरर आया हमारा, तो हम इस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखना ज़रूरी है कि ये एरर क्यों आया हमारा। तो लेट्स सी, हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने सेव कर लिया था ये, आई थिंक नहीं किया, आई डोंट नो, सेव किया तो था हमने, बट लेट्स सी कि कितना किया मैंने। हाँ ठीक है, अब मैं पहले देखता हूँ इसे कि एरर क्या आया इसका, 0 1। ठीक है, आए n+1 तक, मतलब अगर मैं यहाँ पे n अगर मैं यहाँ पे इसको मैं ओके कर रहा हूँ, 8 एंटर। ठीक है, वो 120 मुझसे लिखा गया शायद, तो इसकी वजह से उसकी एडिशन ज़्यादा हो गई, तो वो था 5120, 5120 लिखा गया था, तो वो इन्फिनिटी नहीं था। तो ये देखो, मैं इसकी वर्किंग आपको समझाता हूँ अब कि ये हुआ क्या बेसिकली। नीचे ये दोनों इनिशियलाइज करवा दिए, तो 0 एंटर 1 तो सीधा प्रिंट हो गए। ठीक है, उसके बाद फॉर आई इन रेंज आई n+1, तो आई की वैल्यू सबसे पहले हमने 1 इनिशियलाइज की, कॉमा, और जो 1 है वो कहाँ तक चलेगा, n+1 तक। तो n हमने एंटर किया 8 + 1 इज इक्वल टू 9 तक चलेगा। ठीक है, तो मीन कि i इज इक्वल टू 1 है, और जो 1 है लेस देन 9 है, जो कि ट्रू है, और नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आया तो ये चीज चलेगी अब। ठीक है, c इज इक्वल टू a+b, तो c में अब क्या आया, a+b, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू हो गई 1। क्लियर, तो उसने नीचे प्रिंट करवा दिया 1, तो एक ये प्रिंट हो गया, एक 1 प्रिंट हो गया, और एक और 1 प्रिंट हो गया, ये 3 प्रिंट हो गए, ये देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब ऊपर गया i की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 हो गई, तो i हो गया 2, तो कॉमा 2 इज लेस देन 9, जो कि ट्रू है, तो नीचे आया। ठीक है,
तो जब नीचे आया c इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब c की वैल्यू 1 हो गई थी, क्लियर। तो c की वैल्यू तो लास्ट टाइम 1 होगी तो प्रिंट हो गई। अब c की वैल्यू a प्लस बी है, क्लियर। बट आपने ये नहीं देखा कि a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, अभी किया नहीं हमने यहाँ पे। तो इससे पहले जैसे ही यहाँ 1 प्रिंट हुआ, a और b की वैल्यू चेंज करवाई है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी हो गया। अब b कितना था 1, तो अब a की वैल्यू हो गई 1 और b इज इक्वल टू सी, मतलब c में जो है c की वैल्यू b की वैल्यू हो गई 1। समझ आई, c में भी 1 था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ ना। ये देखो c इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो a और b 1 1 हो गए। अब नीचे आएगा दोबारा यहाँ पे वापस i2 और 2 इज लेस देन 9। अब दोबारा c की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, तो a प्लस बी, तो ये कितनी हो गई 2, तो उन्होंने प्रिंट करवा दिया 2 प्रिंट हो गया सीधा। तो ये सेकंड प्रिंट हुआ। अब उसके बाद स्वैपिंग, दोबारा स्वैपिंग क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी, अब b की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, और b इज इक्वल टू सी, c की वैल्यू क्या थी 2, सॉरी यहाँ पे b आएगा, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 2। अब i इज इक्वल टू 3 हो गया और 3 इज लेस देन 9 जो कि ट्रू है, नीचे आया, क्लियर। और c इज इक्वल टू a प्लस बी, अब a क्या है 1, b क्या है 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 जो कि 3 हुआ। तो ये 3 प्रिंट हो गया। तो लाइक दिस फिबोनाची ऐड होती जाएगी और एंड में इसको स्वैप करवाना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर्स पीछे वाले इनिशियलाइज करवाने जरूरी थे, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा आपका, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, राइट। रेस्ट ऑफ द you know your programs and the explanation of will be covered in the next video. Okay, stay tuned.